Hello friends, so many of you in the last series of videos requested for my answer sheet. So ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਕੁਝ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇਟ ਥਰੂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਂਡ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਲਸੋ ਹੂ ਆਰ ਇਨ ਸਰਵਿਸ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਮਚ। ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਐਸਪੀਰੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਬਟ ਹਜੇ that is not available with me। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, these are the answers that I wrote very near to the examination itself। so ਮੇਰੇ ਜੋ actual PPSC ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣਗੇ they will be very close to what I am showing you now। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਨਸਰਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ 21 ਦੇ ਹੀ ਜਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਯੂ ਨੀਡ ਨਾਟ ਵਰੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ April। 1 April ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 April ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਸੀਗੇ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਈਚ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਆਨਸਰ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਓਨ ਆਨਸਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਰ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਟਸੈਲਫ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਜ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ did not meet the needs and aspirations of 19th century India। Analyze। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਨਸਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੀਡਸ ਤੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ the education system of British, how it started। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग नाल start होया सी। so you can see I have given a reference of Warren Hastings here। ठीक है, rather than just writing a simple line, एक exact factual name इथे लिखा गया है so that history ਦਾ आंसर ਇਹ बने। right, so that is how this can be, although introduction can be improved। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਰ answers ਦੇਖਾਂ ਆਪਦੇ, introduction can be improved much better। but a cheese hai that you can also incorporate in your answers, that try to mention facts related to that question in the answer everywhere starting from the introduction itself। ठीक है, so this is the first point that you have to see। फिर देखो एजुकेशन पॉलिसी बारे ब्रिटिश ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, मैंने ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਨਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਸ਼ੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਦੀ ਆਨਸਰ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਲਦੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਨਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ਡ। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर कि जो एक्चुअल आंसर है ਉਹਦੀ डिमांड हाफ पेज तो बाद शुरू होनी चाहिए है। ठीक है, these are some improvements that I see now that could have been made even further। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀਫਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ योरसेल्फ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਰਾਦਰ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਕੀਪ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਟਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ, ਕੁਝ ਕੀਵਰਡਸ ਲਿਖ ਸਕੋ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਬੈਸਟ। ठीक है, एंड देन मैंने हुण इन्होंने एनालाइज किया सी, आई हैव टू राइट द एनालिसिस पार्ट आल्सो। इत्थे तो पहला मैं लिखता कि मैं मीट नहीं किया। एनालिसिस का मतलब है यू शो द अदर साइड आल्सो कि इज द कंप्लीट स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू और नॉट। सो बट देखो, ये ब्रिटिश एजुकेशन के सानू फायदे भी होए है, चाहे वो अपने भले नहीं बनी सी, that was for their aims and aspirations, not for Indians, but we had some indirect benefits। so मैंने conclusion ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ यूज किया है that I wrote the benefits that we got from the educational scheme of India। ठीक है, सो इस तरीके नाल मैंने अपनी सारी एजुकेशन रिलेटेड जो मेरी नॉलेज सी वो इस च पुट करती है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यही पढ़िया सी आप एजुकेशन पॉलिसी बारे, की एजुकेशन पॉलिसी सी, उन्हां दे फायदे क्या है, नुकसान क्या है।
दैट इज वॉट इट इज एंड ਉਹ ਇਸ ਆਨਸਰ 'ਚ मैंने कंप्लीटली लिख ਦਿੱਤਾ ठीक है दिस इज हाउ कंप्लीट नॉलेज ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ many of you know all of this thing but ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਂਦੇ that is what I say ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਹੈ ठीक है let's see the next question so various programs and policies by the government for socio-economic empowerment of scheduled caste and scheduled tribe एक मिनट scheduled caste and scheduled tribes have tasted limited success discuss ठीक है सो अगेन SC STs ਲਈ जो प्रोग्राम्स है वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए है दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग सो मैंने अगेन वही पैटर्न फॉलो किया है पहला प्रोग्राम्स क्या है वो डिफाइन करते बट इत्थे चीज जो सीखने वाली है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कैटेगराइजेशन मैंने प्रोग्राम्स एज अ लिस्ट नहीं लिखे है रादर व्हाट आई डिड मैंने प्रोग्राम्स ਨੂੰ ਵੀ कैटेगराइज कर ਦਿੱਤਾ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स है लीगल है एंड यू सी कितना ब्रीफली मैंने लिखा होया है थोड़ा थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਕੀਮਸ ਲਿਖ ਦੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਮ क्या है वो लिख सकते हो इन सिंगल लाइन इटसेल्फ अगेन वही मल्टीपल लाइंस नहीं बनानी है बट यू सी आई हैव गिवन सो मच ऑफ माई नॉलेज इन दिस आंसर बाय कीपिंग इट ब्रीफ राइट ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਬਣਾਓਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਪੇਸ ਕੰਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦ ਕਾइंड ऑफ नॉलेज दैट यू हैव राइट नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिटेड सक्सेस हुई है सो मैंने लिखा कि किवें ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि ट्राइबल्स या एससीज दी लिमिटेड सक्सेस है पावर्टी है माल न्यूट्रिशन है लो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज देयर प्रॉबेबली टाइम की कमी की वजह तो मैंने डाटा नहीं लिखा है बट इफ यू हैव टाइम यू कैन ऑल्सो मैंशन दी डाटा टू शो कि किवें सक्सेस लिमिटेड रही है राइट फिर मैंने लिखता कि ये रीजंस क्या है लिमिटेड सक्सेस दे क्वेश्चन इज आस्किंग कि लिमिटेड सक्सेस रही है आई हैव टू डिस्कस कि ये रीजंस क्या रहे ने आई हैव मैंशन दोस रीजंस ब्रीफली जिथे जिथे पॉसिबल सी उत्थे मैंने एग्जाम्पल भी ऐड करने की कोशिश की है ठीक है एंड देन फाइनली आई हैव कंक्लूडेड कि किवें इन्हां चीज़ां नूं बेटर कर सकते हैं ठीक है सो इस च देखो एनालिसिस या क्रिटिकल वाला पार्ट नहीं है सो मे बी आई हैव नॉट गिवन दी अदर साइड की सक्सेसफुल भी रही हैं दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हेयर 10 मार्कर हैगा है वैसे भी सो आई हैव कंक्लूडेड बाय गिविंग अ वे फॉरवर्ड कि किमें इस च सक्सेस अचीव की जा सकती है ठीक है सो अगेन मैंने क्या क्या लर्न किया SC ST दी स्कीम्स मैंने लर्न की बेनिफिट्स ओदे इशूज ओदे चैलेंजेस ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ क्या है ਉਹੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਚ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ which was not asked in this answer ਅਦਰਵਾਈਜ਼ मैंने ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ठीक है सो एक होर चीज तुसी इत्थे देख सकते हो दैट आई हैव यूज्ड कमिटी नेम्स आल्सो सो इस तरीके नाल कमिटीज यूज करो कीवर्ड्स यूज करो देखो डोल गिविंग अप्रोच अमर्त्या सैन मैंने इत्थे लिखा होया आई विल क्लियर दिस फॉर यू यू कैन रीड इट हेयर बेटर ठीक है जाजा कमिटी रिपोर्ट अमर्त्या सैन डोल गिविंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज है रिलेटेड नेम्स है कीवर्ड्स है इस तरीके नाल करो ताकि सिंपलिस्टिक नालों ज्यादा इंटलैक्चुअल आंसर्स बन जाते हैं ये मार्क्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है ठीक है सो दिस विल बी देयर नेक्स्ट क्वेश्चन इज women have waged an incessant struggle during colonial times as well as in independent India until present times explain by giving examples राइट ਹੁਣ देखो एग्जाम्पल्स तो आप सारे क्वेश्चन लिखनिया ही है बाय डिफॉल्ट बट अगर किते लिखता कि बाय गिविंग एग्जाम्पल्स दैट मीन्स कि पूरा आंसर भरिया होना चाहिए है जिन्ने पॉइंट्स लिखोगे दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल तभी बेटर मार्क्स मिलणगे ठीक है ओब्वियसली सिंपल लिख सकते हो अगर तुहानू एग्जाम्पल्स नहीं आती आए थोड़ी है कि क्वेश्चन छड्ड के आएंगे कुछ तो लिख के आएंगे बट वील मेक श्योर कि कितनी एग्जाम्पल्स आती वो प्रेजेंट करिए ताकि मार्क्स भी ज्यादा मैक्सिमाइज हो राइट सो इस च देखो सेकंड चीज ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट वन थिंग ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ 15 ਮਾਰਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਲੋਨੀਅਲ ਟਾਈम्स स्ट्रगल विमेन ਦੀ क्या रही है देन as in independent India struggle क्या रही है and then present times even today women किस तरीके नाल अपने राइट्स ਲਈ फाइट कर रही है ब्रीफली ये क्वेश्चन पूछ रहा है ठीक है सो इसीलिए तुसी देखो मैंने तीन हेडिंग्स च डिवाइड किया है फर्स्ट हेयर यू कैन सी इन द colonial times next हेयर यू विल सी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया women ਦੀ स्ट्रगल क्या रही and finally ਅੱਜ women क्या कर रही हैं अपने राइट्स ਲਈ ठीक है एंड यू कैन सी सारे पॉइंट्स दे विच मैंने किसी ना किसी तरीके नाल एग्जाम्पल्स नेम्स ऐड करने की कोशिश की है विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस आंसर ऑल्सो
ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਾਰੀ ਬਾਹਨੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਮੈंने ਲਿਖੀ, ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਲਿਖੇ, ਰਾਈਟ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਕਨਕਲੂਡਡ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡਰੈਸ ਦਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਮਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ 3 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਈ ਐਡਰੈਸਡ ਆਲ ਦੀ 3 ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈंने ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ देयर। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी ते है। ठीक है। सो अगेन लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी उस टाइम ते काफ़ी न्यूज़ ते सीगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨवायरमेंट ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਚ ਮੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੈਨ ਦੇ ਆਸਕ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈंने क्या ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ क्या है, ਕਿਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। UCCD ਦਾ ਦੇਖੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ UCCD ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਜ਼ਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੈਟ ਟੂ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈंने ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਡਿਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਨਿਊਟਰਲਿਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਦੈਨ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ। ठीक है। थोड़ा या मैं ये कहूंगी कि आई यूज टू राइट वेरी वेरी शॉर्ट पॉइंट्स। आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा जा एक लाइन पूरी कंप्लीट होवे कि पॉइंट जेड़ा है कन्वे होवे, बट अदरवाइज दिस हैज वर्कड फॉर मी। बट आई ऑलवेज यूज टू गेट दिस इनपुट कि थोड़ा जा वड्डा पॉइंट लिखो। आई वुड रिकमेंड यू टू राइट लिटिल बिट मोर, क्योंकि ये जेड़ा छोटी जी चीज है मे बी आपा नु समझ आ जाए। ठीक है। बिकॉज वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस वे फॉर लॉन्ग, बट एग्जामिनर ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਨਵੇ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, that will be problem। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਥ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਲਿਖੀਏ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਲਿਖੀਏ। ਲੈਂਥ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਿਲਿਟੀ। ਦ ਐਗਜ਼ਾमिनर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। बस वो टारगेट रखना है। तो इसीलिए खुद ही पढ़ के देखो कि भाई एग्जामिनर ਨੂੰ समझ आएगा कि नहीं। ठीक है। फाइनली आई कंक्लूडेड दिस आंसर। अगेन यू सी नीति आयोग, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल, मिहिर शाह कमेटी रिपोर्ट, इस तरीके नाल कमिटीज इंपॉर्टेंट नेम्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਨਾਟ ਲਾਈਕ दैट। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ एग्जाम तो पहला ही कुछ पेपर्स लिखे सी, उस चो ही एक कुछ आंसर्स आई एम प्रेजेंटिंग। सो हर आंसर इसी तरीके नाल ब्रोकन डाउन होना चाहिए। एवें नहीं कि आप एक या 2 आंसर पूरे पेपर दे विच वधिया लिखते, बाकी सब इधर उधर जा रहे ने, देन यू विल नॉट गेट मार्क्स। हर क्वेश्चन ऑन एवरेज इस तरीके का दिखना चाहिए है। हर क्वेश्चन च कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होनी चाहिए है। हर क्वेश्चन सब पार्ट्स च डिवाइडेड होना चाहिए है, हेडिंग्स होनी चाहिए हैं, कुछ डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन किते ना किते प्रेजेंट होनी चाहिए है, राइट। दैट यू हैव टू इंश्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेने हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इतो मैं तुहानू दसना चाहनी है हाउ डू यू आंसर द क्वेश्चंस दैट यू हैव नेवर प्रिपेयर्ड फॉर। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने बारे पता ही नहीं हुंदा, कदी सुनिया भी नहीं हुंदा मे बी, या ज्यादा प्रिपरेशन आपां ਉਹਦੇ बारे डेडिकेटेड नहीं की है, तो एवें तुसी किवें डील करो। ठीक है। दिस इज वन सच क्वेश्चन जो मेरे सामने भी आया सी। आई डिड नॉट नो मच अबाउट दिस क्वेश्चन। इफ यू सी मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा सी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल नहीं है, तो हाउ वुड आई नो द डिटेल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। द क्वेश्चन इज आस्किंग एनालाइज द फैक्टर्स दैट मेक छोटा नागपुर प्लेटू एन इंपॉर्टेंट हेवी इंडस्ट्री रीजन, right। Also discuss why this region lags behind in development of knowledge based industries। ठीक है। तो पहला तो पूछ रहे हैं कि इस हैवी इंडस्ट्री इतनी ज्यादा क्यों है। सेकंड की नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री क्यों नहीं है, राइट। नाउ देखो छोटा नागपुर डेडिकेटेडली मैंने प्लेटू इन्ना नहीं पढ़िया सी, बट आई अंडरस्टैंड छोटा नागपुर प्लेटू, मैनू लोकेशन पता सी। सो व्हाट आई डिड इज थोड़ा एक मैप बना दिता है। ऑल्दो दिस इज अ वेरी शैबी मैप, आई वुड रिकमेंड कि थोड़ा बेटर मैप दिखाया जाए।
वही मैं समझा रही हूँ कि मैनू ये क्वेश्चन आंदा नहीं सी, आई कैन नॉट एग्जैक्टली पॉइंट आउट वेयर दिस प्लेस इज एग्जैक्टली, नहीं मैं दस सकती, मैनू लगता है कि मोस्टली ये गलत बनाया होया है मैप, राइट। बट सिंस जिन्ना मैनू आंदा सी आई ट्राइड टू डू इट, सो इसीलिए एक मैप ते पहला मैं लोकेशन दिखाती, देन आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि ये वो रीजन है जिथे बहुत सारे आयरन कोल वगैरह मिलता है, बिकॉज आई हैव स्टडीड द बेसिक्स ऑफ आयरन ओर्स कोल। तुसी बहुत पूछते हो ना कि इकोनॉमिक जोग्राफी च कितना किता जावे, बहुत ज्यादा कंटेंट आता है, सो आई वुड रिकमेंड कि बेसिक चीज़ा करो, जिमें कि आयरन कोल स्टील एल्यूमीनियम, ये चीज़ा जड़ियां हैं बेसिक है, अगर मैनू यदि नॉलेज है देन आई कैन आंसर द क्वेश्चंस दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस फैक्ट, राइट। इसीलिए तुसी देखो कि मैंने लिख दिता दैट आई नो कि इस रीजन एक नक्सल इफेक्टेड एरिया भी है, अगर ये तुसी सारा देखो यही अपनी मिनरल बेल्ट भी है इंडिया दी, सो आई न्यू कि भाई ये सिग्निफिकेंस है। देन आई ऑल्सो न्यू कि भाई इंडस्ट्री एक जगह ते क्यों लोकेटेड होंगी, ओदे फैक्टर्स क्या है, ये आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी च फर्स्ट चीज ही पढ़ते हैं कि कोई इंडस्ट्री किते क्यों लोकेटेड होंगी है, ठीक है। अपन पता है उत्थे लैंड होवे, लेबर होवे, पॉलिसीज होन, पानी होवे, इन्वायरमेंट होवे, अच्छा गवर्नमेंट का सपोर्ट होवे, ये सब चीज़ा रिक्वायर्ड है किते भी कोई बिजनेस सेटअप करने ਲਈ। सो यूजिंग दैट नॉलेज आई ट्राई टू राइट द इंटायर आंसर, ठीक है। सो इसीलिए फैक्टर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर हैवी इंडस्ट्री रीजन, राइट। सो उस च मैंने फैक्टर्स लिख दिते, यही लैंड लेबर पानी सपोर्ट पॉलिसीज विच आई न्यू, ठीक है। उस टाइम ते मिशन भी बड़ा पॉपुलर सी, मिशन पूर्वोदय उदों ही लॉन्च होया सी, एंड आई यूज्ड कि भाई इस तरीके नाल गवर्नमेंट पॉलिसीज, अदरवाइज डेडिकेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज इस जगह दी मैनू नहीं पता, बिकॉज मैं स्टेट वाइज थोड़ी पॉलिसीज यूज कर रही हैं, बट दिस वाज अ मिशन दैट वाज जस्ट लॉन्च्ड एट दैट टाइम दैट ईयर ओनली, एंड ये बहुत फेमस सीगा ऑल ओवर इंडिया, वी हैड टू स्टडी इट फॉर यूपीएससी ऑल्सो इवन इफ इट वाज सेंट्रिक टू सर्टेन रीजन। सो आई यूज्ड दैट कि देख लो गवर्नमेंट खुद ही पुश कर रही है थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। So this is how I used my knowledge to answer this question, although I had no idea. So zero ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ 15 ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, you yourself see कि मैंने almost answer ਕੀਤਾ ही है answer without knowing anything, seriously even today I don't know, I cannot mark छोटा नागपुर में भी accurately, ठीक है, क्योंकि हमें इतनी डिटेल्ड मैंने इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, देयर इज लिमिट टू व्हाट वी कैन डू। देखो स्टार्टिंग च मैं यदि जनरलिस्टिक जी छोटा नागपुर दी इंट्रोडक्शन दे दी है, हाउ डू यू इंट्रोड्यूस सच क्वेश्चंस, फैक्चुअल डिटेल्स ओदियां दे दो कि छोटा नागपुर प्लेटू है क्या, ठीक है। सो दैट इज हाउ आई ट्राइड, मोस्टली हो सकता है इस बहुत सारी गलतियां भी होन, बट मेरा एम ये है कि मैं जीरो तो आपदे नंबर जड़े है इस आंसर दे विच वधावां, ठीक है। मेरी नॉलेज इस जीरो वाली है एग्जैक्ट, बट वाई शुड आई गेट अ जीरो, मेरे को होर भी तो बहुत कुछ आता ही है, जो कुछ आता है वो ट्राई टू पुट किता एंड इट गेव मी मार्क्स, राइट। इंस्टेड ऑफ जीरो आई विल प्रोबेबली गेट 5 to 6 मार्क्स इन दिस आंसर, ठीक है। सो दैट इज द एम, 5-6 नंबर तो बहुत बड़ा होंदा है, पूरा रैंक चेंज हो सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन विच इज हैविंग मैनी मैनी पार्ट्स, राइट। सो मेक श्योर कि हर पार्ट जेड़ा है क्वेश्चन दा एड्रेस होवे, विच जिथे जिथे तुसी की देखो गार्डियन रिपोर्ट, राइट, पानी दी पोल्यूशन वगैरह वाले गल कर रहे हैं बायोमेडिकल वेस्ट की वजह ते, एक कोविड दा टाइम सी उस टाइम ते, सो काफी सारे न्यूज़ आइटम्स आंदियां रहंदियां सी, आई यूज्ड टू राइट दीज की फ्रेजेस विद मी, इस तरीके नाल मैं लिख लेंदी सी, जो बहुत ही कैची टाइप्स लगदी सी। ये वैसे भी एसेस च चीज जरूरी यू नो हुंदी है, आपां नूं लिखनी पैंदी है, बट अगर जीएस च भी फिट आ जाए तो वाई नॉट राइट, अगर आंदी है तो वाई नॉट राइट, ठीक है। सो आई रोट इट हेयर ऑल्सो, दिस गिव्स एन एडिशनल एज टू योर आंसर, नॉर्मल बोरिंग आंसर्स नालों यही आंसर्स च मसाला ऐड हो जाता है, ठीक है जी। एंड देन सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, नीति आयोग दा रेफरेंस फिर तो है, युगांडा दी एग्जांपल, देयर विल बी सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू विल सी, नॉट वन बट मल्टीपल इन दिस आंसर, दिस इज हाउ यू कैन एलिवेट द लेवल ऑफ योर आंसर देन द नॉर्मल कंपटीशन, राइट। नाउ इकोटोन्स ते क्वेश्चन आया विच इज अ बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट सेक्शन, ऑल्दो ये बहुत ईजी नहीं सीगा, अगेन ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ मैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन कभी भी नहीं ਕੀਤੀ ਸੀ। इकोटोन्स आर कंसिडर्ड as areas of great environment importance as well as थोड़ा या क्वालिटी इसी तरीके नाल सी मोस्ट थ्रेटेंड वंस, ठीक है। सो क्योंकि पुराने हो गए, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव दीज आंसर्स इटसेल्फ, सो नाउ सो इकोटोन्स अगेन पढ़िया जरूर सी, प्रीलिम्स लेवल दा मैंने मेजरली इकोटोन्स पढ़िया सी, इकोटोन्स ते ब्रीफ नॉलेज मैनू सीगी, बट आई डिड नॉट हैव डेडिकेटेड नोट्स एज सच प्रिपेयर्ड फॉर इकोटोन्स, ठीक है। सो अगेन वही मैनू पता था है, बट मे बी हो सकता है कि मैंने ते तैयारी एज सच डेडिकेटेड नहीं की होवी,
ਸੋ ਸਟਿਲ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਵਟਐਵਰ ਆਈ ਨਿਊ, ਰਾਈਟ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਕਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਹੈਡ ਬੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਫॉर ਈਅਰਸ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਪ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਹੈਲਪਡ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋਟੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਸ਼ੈਲਫ ਆਈ ਹੈਡ ਸੀਨ ਇਨ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। सो आई थॉट कि वही वाई नॉट ड्रॉ इट हेयर, ठीक है। सो मैंने वो इसीलिए ट्रांजिशन जोन, ये देखो तुसी कॉन्टिनेंटल सेल्फ दिखाया, इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इधर मरीन इकोसिस्टम, एंड दिस बिकेम द इकोटोन एरिया, ठीक है। सिर्फ ये गलती सी कि इनू हमेशा बॉक्स च पुट करना चाहिए है, थोड़ा लेबल भी करो अगर क्लीयरली नहीं पता चल रहा कि ये डायग्राम तो की रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। इतने तो देखो क्लीयरली दिख रहा है कि मैं एग्जाम्पल शो कर रही हूँ, सो नो नीड टू राइट, ऑलरेडी उत्ते लिखा होया है, राइट। इस तरीके नाल बल्कि आई कुड हैव डन। सो इस तरीके नाल आई आल्सो हैव स्कोप टू इंप्रूव एवरीवेयर। नाउ आई एम ऑन द अदर साइड, नाउ आई कैन सी। हमेशा टीचर दी साइड तो आप दे आंसर्स नु देखना शुरू करो, देन यू विल लर्न इवन मोर देन व्हाट यू आर राइटिंग कि टीचर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। सो इस तरीके नाल डायग्राम बनाया, इकोटोन्स दे बेनिफिट्स पूछे गए सी, इन्वायरमेंटल इंपोर्टेंस आपा लिख दिती है, राइट। एंड देन बिकॉज आई वांटेड टू राइट कि ਇਹ इन्ना दा as well as threatened ones, second part कह रहा है threatened ones, so threaten क्या कर रहा है वो सारे points लिख देते, right। here also you observe कि मैं agriculture दे pesticides दा impact लिखना चाहनी है, instead of writing a big paragraph मैंने उन्हें flow chart च convert कर दिता। agriculture चो जिन्ने भी chemicals fertilizers वगैरह run off करके जाते हैं, they go into water and cause eutrophication, तुसी ये concept पढ़िया होएगा। दैट लीड्स टू एल्गल ब्लूम्स, ठीक है। एल्गी ज्यादा ग्रो होंगी है, जिन्ना ज्यादा एल्गी उन्ना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, राइट। एंड ऑक्सीजन की डिमांड जिन्नी ज्यादा ऑक्सीजन की कंजम्पशन होंगी है, उन्ना उत्थे बायो सिस्टम जिहड़ा है, बायोटा जिहड़ा है वो जिहड़ा है, दे लैग ऑक्सीजन एक्चुअली, एंड दे क्रिएट डेड जोन्स, राइट। सो इस तरीके नाल भी फ्लो चार्ट्स यू कैन राइट विद इन द आंसर टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग, राइट। सो आई होप तुहानू समझ आ रहा है। अगेन वही, दिस इज माई माइंड बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द आंसर्स। अगर तुसी अजे ये कॉन्सेप्ट सारे क्लीयर नहीं किते है, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर यू, बट वही है कि हौली हौली पढ़ते रहो, यू विल रीच एट दैट लेवल, ठीक है जी। देन नेक्स्ट आ गई है, discuss the security challenges associated with the Indian coastline, highlight India's preparedness in addressing the same, ठीक है। सो कोस्ट लाइन ते क्या चैलेंजेस है वो लिखने हैं, राइट। सो हेयर आई वांट टू हाईलाइट कि भाई फैक्ट्स वगैरह आप लिखते हैं बट गलत नहीं होने चाहिए है। मैं कोस्ट लाइन दी लेंथ लिखना चाह रही सी, बट आई रोट दी इंटायर टेरिटोरियल लेंथ बाय मिस्टेक, जल्दी जल्दी च आप जी मिस्टेक्स करांगे, बट वी हैव टू रिड्यूस, ठीक है। सो मेक श्योर कि एजी मिस्टेक्स ना हो। बट देन यू कैन सी कि इन्होंने पूछा है कि डिस्कस दी सिक्योरिटी चैलेंजेस एसोसिएटेड एंड हाईलाइट दी इंडियाज प्रिपेयर्डनेस, यानी कि इंडिया दे क्या मेजर्स वगैरह लिते गए ने, राइट। सो इत्थे देखो पहला तो मैं सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये 10 मार्कर है, आई डू नॉट हैव टू राइट मच मच, 2 पेज मिलते हैं 10 मार्कर ली यूपीएससी दे विच। सो आई हैड टू इंश्योर कि मैं हमेशा 1.5 पेज लिखने की कोशिश करा, तभी आई विल बी एबल टू कंप्लीट, ठीक है। यूपीएससी इज वेरी वेरी लेंथी पेपर, इवन पीपीएससी च इट इज वेरी लेंथी, बट पीपीएससी च ऑप्शन नहीं है। पीपीएससी च क्या होता है, 10 मार्कर एक सिंगल सिंगल पेज मिलता है, राइट। सो यू हैव टू राइट दिस कंप्लीट पेज, ठीक है। सो दैट यू हैव टू गेट अकस्टम टू, प्रैक्टिस बहुत करो, यही सब चीज़ां सीखने जिन्ना ज्यादा तुसी प्रैक्टिस कर दो आइडियाज खुद ही आन लग जाते हैं। अगर तुसी कभी पहला प्रैक्टिस ही नहीं करके जाओगे, लिख के ही नहीं जाओगे, तो इवन एग्जाम च यू वोंट सी मच चेंज और मच बेटरमेंट इन योर आंसर। इसीलिए वही है ना, जंग दी लड़ाई पहला करनी पैंदी है। जंग च सक्सेस तुहाडी, व्हाट यू डू इन दी वॉर, it doesn't depend on that, it depends on what preparation you did before you entered the war, ठीक है। सो इसीलिए प्रैक्टिस ज्यादा करो, इसीलिए आप डॉ प्रोग्राम वगैरह चलाया है, ओदा मोटिव ये है कि तुसी 40 दिन डेडिकेटेडली लिखो, आपे ही वो हैबिट बन जाएगी, उस तो बाद मैनू कुछ करन दी लोड़ नहीं पैनी, यू विल बी राइटिंग दी आंसर्स योरसेल्फ, ठीक है। सो वो एक मोटिव है ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਟੂ ਦਿਸ ਲੈਵਲ।
ठीक है। सो फिर ਆਪਾਂ ਮੈਜਰਸ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਇਨਸਟੈਡ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖੋ। ਆਈਐਨਐਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ 1.5 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਾਲਾ ਆਂਸਰ ਆਈ ਹੈਵ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। ਰਾਈਟ, ਮੋਸਟਲੀ 10 ਮਾਰਕਰਸ 1.5 ਪੇਜ ਚ ਆਈ ਟ੍ਰਾਈਡ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼। 15 ਮਾਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ पौने 3 पेज almost I used to write, right? So now this is again a very interesting answer. You can again see that representation wise flowcharts वगैरह है. I have broken down into various parts. इथे इस क्वेश्चन च इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया दी पूछी जा रही है कि पास तो लेके आज तक क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी रही है ते अगे जाके ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्या करना है, प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी की चाहिए है। ठीक है। सो आप पूरा पास्ट मैंने इथों तक रिप्रेजेंट किया है। अगेन आई हैड नॉट प्रिपेयर्ड दिस डेडिकेटेडली इन माय नोट्स, बट बेसिक आइडिया सी 5 ईयर प्लान्स मैंने पढ़े हुए सी। ठीक है। सो 5 ईयर प्लान्स जिवें आपां पढ़दे हां कि फर्स्ट च क्या होया, सिक्स्थ च क्या होया, दैट नॉलेज आई हैड, ओदे बेसिस ते मैंने आंसर लिखिया। डेडिकेटेडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी दे उत्ते प्रिपरेशन अगेन मैंने नहीं की सी। एज आई टोल्ड यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिराइव्ड। ठीक है। इन्नी ज्यादा आप पहला तो ही सारा कुछ प्रिपेयर करके जाइए, इट इज नॉट फीजेबल। मोस्टली क्वेश्चंस आउट ऑफ आर नोट्स ही आते ने, बट आउट ऑफ आर नॉलेज नहीं आते है। नॉलेज अपन हर चीज की होंगी है बिकॉज वी हैव स्टडीड सो मच। अगर बेसिक्स कवर किते हैं, 5 ईयर प्लान इज बेसिक्स ओनली। 5 ईयर प्लान आंदा सी, सो आई ट्राई टू डिड्यूस 5 ईयर प्लान्स च ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह दे बेसिक्स लिखे जाते सी, एटलीस्ट दैट आई कैन राइट, नॉट इफ द डिटेल्ड प्रोविजंस। ठीक है। सो इसीलिए आई यूज्ड दैट। तुम देख सकते हो 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान दे अराउंड द टाइम। देन इंडस्ट्री ते फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान तो शुरू होया सी, या नेहरू महाल नोबिस मॉडल तो ओदा मेंशन करता है मैंने। ठीक है। देन एलपीजी एरा दा मैनू पता सी, आई रोट अबाउट दैट हेयर। ठीक है। राजीव गांधी एरा दा मैनू थोड़ा जिहा पता सी कि उन्होंने काफी पुश किया सी बिकॉज ऑफ हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दैट वी स्टडीड। सो ये उस तो मैंने पूरा क्वेश्चन डिराइव किया इथों तक। राइट। करंट नीड्स क्या है, ये जनरल नॉलेज हैगी है। अगर मैं तुहानू अज भी पूछ ला कि इंडिया की इंडस्ट्री नू क्या जरूरत है, तुसीं दस सकते हो। लेबर स्किलिंग, लैंड लॉज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ये सब बंद करना है। टेक्नोलॉजी की नीड्स नू मीट करो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है। सो वो सब ही इस दे विच मैंने लिख दिता है। राइट, एंड देन फाइनली कंक्लूडेड विद व्हाटएवर वाज रिक्वायर्ड। ठीक है। इस तरीके नाल तुसी आंसर्स लिख सकते हो। राइट, नॉलेज विल बी लिमिटेड, यू विल फील शॉक्ड कि क्या क्वेश्चन आ गया है, बट यू हैव टू यूज योर करंट। इस क्वेश्चन च नाउ आई वांट टू शो यू द फ्लो चार्ट्स दैट यू कैन यूज। अगेन एक फ्लो चार्ट मैं तुहानू पहला रफ दिखाया है, बट नाउ देखो डेडिकेटेड। सो क्वेश्चन कह रहा है सर्जेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंक्रीजेस द सिस्टमैटिक रिस्क एंड देयर बाय द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। In the light of above statement, discuss how does policy uncertainty affect investment. Right? So देखो question ही difficult है, it was not easy. मैंने 2-3 बार पढ़ना पया सी when I was answering this question. I had to make sense of this question कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। So I actually started drawing this diagram कि मैनू भी ये क्वेश्चन समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड इज ब्रेन च थिंक करदे करदे आई wrote this, made this fabulous kind of जो मैनू लगता है diagram here. You can see even the commentator has pointed that कि to the point तुसी address की है demand and it is a very good flow of ideas. So it was done actually because I was trying to understand the question itself. It is not an easy question. ठीक है। सो दैट इज व्हाट इस तरीके नाल भी तुसी आपदा फ्लो ऑफ थॉट प्रोसेस दस सकते हो when such difficult questions are there। इस इकोनॉमी विच स्पेशली फ्लो चार्ट्स जेडे आ काफी कम आंदे ने बिकॉज वन थिंग इज लिंक्ड टू अनदर। किवें इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी साडी इकोनॉमी नू एक्चुअली इंपैक्ट कर सकती है, दैट इज व्हाट आई ट्राई टू थिंक हियर एंड शो इन द ग्रामेटिक फॉर्म। राइट। सो प्लीज इनू भी तुसी पॉज करके थोड़ा देखने की कोशिश करना दैट हाउ दिस हैज हैपेंड एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो हियर। दिस वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डू इन एनी आंसर because again I hadn't built this, I was just thinking like this।
right? This is what you have to achieve. Start thinking in a mind map kind of format ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ answers ਚ reflect ਹੋਏਗਾ, right? Then next, now this again, this question ch I want to show you कि किਵੇਂ बहुत सारे parts ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਈ questions ਦੇ 15 markers ਦੇ especially, and you cannot miss any part. So ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ disaster ਨਾਲ related ਹੈ. Recent industrial disaster at Visakhapatnam has brought back chilling memories of Bhopal gas tragedy. राइट, ये इंट्रोडक्टरी लाइन है. नाउ हेयर आई आल्सो वांट टू पॉइंट कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि साडे टीचर ने क्या है कि इंट्रोडक्टरी लाइन तो सिर्फ कंफ्यूज करने लिए लिखी हुई है, इट इज नॉट टू बी यूज्ड इन द आंसर. एवं नहीं है. यूपीएससी और पीपीएससी इज नॉट पागल. दे आर राइटिंग अ लाइन, दे वांट यू टू फोकस ऑन दैट लाइन आल्सो. अगर डिस्पेंसिबल होंदी तो वो लिखे दे ही ना. सो इसीलिए तुसी देखो कि यू हैव टू मेक श्योर कि तुसी ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵਗੈਰਾ ਆਨ ਦੈਟ ਸ਼ੋ ਕਿ ਭਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. then ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੀਟ ਕਰੋ. then ਕਹਿ ਰਹੇ in light of the above statement discuss the causes, consequences, remedial measures available for victims of industrial disasters, also suggest measures to arrest such incidents. ठीक है. सो इस चार चीजा डायरेक्टली पूछिया गई हैं. ठीक है. नाउ देखो टू बिगिन द आंसर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर बारे मैं सारा कुछ पहला एक्सप्लेन किया है, या सिंपल डिजास्टर्स बारे आई ट्राई टू राइट द बेसिक्स. 15 मार्कर है, आई कैन राइट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज इन क्वेश्चन. डिजास्टर बारे क्वेश्चन है, सो आई ट्राई टू राइट डिजास्टर्स दे बेसिक्स है. ठीक है. देन द क्वेश्चन इज आस्किंग कि कॉजेज क्या है. सो फर्स्टली तो मैंने कॉजेज या रीजंस दिते. ठीक है. यूज द वर्ड दैट इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. मैंने रीजंस लिखा है इत्थे, ट्राई टू राइट कॉजेज ओनली. ठीक है. बट देखो मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दित्तियां हैं. भोपाल गैस ट्रेजेडी क्वेश्चन जो सी, चरनोबिल, राइट. ये चरनोबिल मैंने याद है दैट आई वाज वाचिंग दिस सीरीज एट दैट टाइम, इसीलिए आई रिकमेंड कि तुसी सीरीज वगैरह एडुकेटिव देखो, क्योंकि वो इनएविडेंटली दिमाग च आ जाती है व्हेन वी ट्राई टू राइट आंसर्स. सो दिस चरनोबिल सीरीज वाज देयर. आई रोट ऑल द आंसर्स. ये देखो एग्जांपल्स भी है. पॉइंट ही मैंने इसलिए याद होया सी बिकॉज आई वॉच्ड द सीरीज चरनोबिल, राइट. इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग. ठीक है. ये ਤੁਹਾਨੂੰ एक कॉन्सेप्ट ਜਿਹੜਾ समझ आ रहा है एक सीरीज तो then you should do it, right. and ਉਸੇ टाइम ਤੇ जापान ਦੀ ਵੀ ਫਿਰ एग्जाम्पल नाल नाल आंदी है. ठीक है. सो दैट इज हाउ आई रोट मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड देयर कॉजेज. देन कॉन्सिक्वेंसेस पूछे गए सी. ठीक है. आई डू नॉट वांट टू मेंटेन द सेम फ्लो ऑफ पॉइंट 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 पॉइंट. इंस्टेड कॉन्सिक्वेंसेस मैंने डिफरेंट वे च रिप्रेजेंट किते हैं. यू सी मैं चाहती था 1 2 3 4 1 2 3 4 लिख सकती सी, बट आई वांटेड टू गिव सम वेरिएशन टू द आंसर. सो व्हाट आई डिड इज ऑर्गेनाइज देम इन सब हेडिंग्स एंड देन रोट देम ब्रीफली. ठीक है. सो ये भी सही है. नाउ यू माइट फील कि ये बहुत छोटा है. ये छोटा नहीं है. अगर तुसी पढ़ के देखो ये डायरेक्टली कॉन्सिक्वेंसेस समझ आएंगे. इवन इफ वन वर्ड इज रिटन डेथ, यू अंडरस्टैंड इट. ठीक है. सो इसीलिए आई एम सेइंग तुसी छोटा लिख सकते हो, बस मेक श्योर दैट सामने वाले नु रीडर नु वो समझ आवे, राइट. सो दैट विल बी देयर. रेमेडियल मेजर्स, हुन इत्थे देखो एक चीज मिसिंग सी. रेमेडियल मेजर्स आई हैव रिटन एंड देन फाइनली जो पूछा गया सी कि आगे सजेस्ट मेजर्स क्या कर सकते हैं. सो मैंने मेजर्स जो है वो इत्थे लिख देते हैं. जस्ट मेक श्योर कि भाई हेडिंग वगैरह बनाई जावे. आई हैव मिस्ड दैट हेडिंग बिकॉज आई वांटेड टू राइट इट इन द कंक्लूजन फॉर्मेट, बट आई वुड रिकमेंड कि वो हेडिंग बनाओ तो ही एग्जामिनर मार्क देगा, राइट. दैट इज देयर. नाउ एथिक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, जिवें पीसीएस च एथिक्स एज सच सिलेबस च नहीं है, बट गवर्नेंस ते सोसाइटी दे पेपर च पूछे जाते हैं. सो यू कैन रीड दिस आंसर ऑल्सो. यू विल सी कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स है. द क्वेश्चन इज सेइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइजिंग कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इवैल्यूएट द रेलिवेंस ऑफ महात्मा गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप. ठीक है. हुन देखो फर्स्ट इन्होंने किया है कि कॉर्पोरेट फ्रॉड्स इंक्रीज हो रहे ने. सो मैंने ये स्टेटमेंट नु जस्टिफाई करने लिए बहुत सारी एग्जाम्पल दित्तियां कॉर्पोरेट फ्रॉड्स दियां. अज तक जिन्नियां भी तुसी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स दियां एग्जाम्पल पढ़ियां होणगियां वो सारियां इत्थे लिख दित्तियां है ब्रीफली. देन क्वेश्चन कह रहा है कि दे कैन बी मे बी इत्थे महात्मा गांधी जी का ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो मैंने ट्रस्टीशिप कॉन्सेप्ट पहला समझा दिता है, राइट. अगेन ग्रेट, दोनों पार्ट्स फर्स्ट क्वेश्चन दे एड्रेस हो गया, इन्हां दा मीनिंग एड्रेस हो गया है. ठीक है. नाउ हाउ इट विल प्रिवेंट कॉर्पोरेट frauds, that I have written with great examples.
ठीक है। एंड फाइनली गांधी जी ਦੇ सिंस ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਤਾ, वन ऑफ गांधी जी sin is कि कमर्स ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मोरालिटी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, अदरवाइज इट will become a sin, right? So this is how the entire answer is written. That is way of thinking and flowing your answer, especially in ethics. ठीक है, ethics ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत बार इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आंदे ने, यूपीएससी इफ यू सी पीपीएससी विच भी ਇਹ ਜਿਹੇ क्वेश्चंस आंदे ने। सो इस तरीके ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਥਿਕਸ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਕਿ ਐਨਸੀਆਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਐਨਸੀਆਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜ਼ ਔਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਜਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈंने ਉਹੀ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਆਈ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ 'ਚ ਦੇਖੋ ਯੰਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਊਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत वध रही है, दे हैव कंट्रोल्ड देयर पॉपुलेशन ऑलरेडी एंड नाउ दे आर एजिंग। सो वो शो करन लई देखो डेडिकेटेडली मैंने मैप दे थ्रू ए रिप्रेजेंट किया। हेयर यू कैन सी नॉर्थ इंडिया दा ते इत्थे साउथ इंडिया दा। आई कुड हैव ड्रॉन दिस डॉटेड लाइन टू शो द वेरिएशन, ठीक है, टू मेक द presentation more clearer, but this is a very great presentation again to show the comparison। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਥॉट ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਵੇ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। मैंने ਮੈਪ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਵੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਗੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋ ਲਿਖੋ। ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ to get more idea. I think I have conveyed most of the important things that are required here. Lastly, again, last example nal I want to show ki kinna importance hai keywords da। Networked governance is a keyword. This is also part of my optional, that was PABAD। So to bhi bahut knowledge hai meri governance and ethics and all polity wale subjects thi। So I used to use this everywhere, not just in one paper, but essays, GS ਦੇ ਹਰ paper 'ਚ ਇਹ knowledge use ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So you also try to use such kind of your knowledge that is coming from graduation or your optional subject। ठीक है, सो इस तरीके नाल keywords mention करो, जिन्नी examples हो सके जगह जगह ते mention करो। then flow charts जिन्ने ज़्यादा हो सकन use करो, instead of just writing paragraph points। diversify your representation। हर आंसर बोरिंग नहीं होना चाहिए है। एग्जामिनर शुड बी इंटरस्टेड इन रीडिंग योर आंसर। जो तुसी इस तरीके नाल बनाओगे बोर्डम ब्रोक होएगी ओदी। इन्ने सारे आंसर्स ओने पैराग्राफ पढ़ के ही इज टायर्ड, right? He is not likely to read your answers, but if you introduce such things, examiner ਨੂੰ ਵੀ interest ਆਂਦਾ ਹੈ to see कि भाई क्या चल क्या रहा है इस answer sheet ਤੇ, ठीक है। So try to do that, it will maximize your marks, right? That is all for this video। अगर ਹੋਰ कुछ है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ required है, please comment sections 'ਚ ਲਿਖੋ, I'll help you there। This is my number, you can WhatsApp it। This is just for WhatsApp, you cannot call on this। I will not be able to pick up। Calling number is this one, you can contact our counselors। डॉ प्रोग्राम डेली आंसर राइटिंग शुरू करो टू रीच एट दिस लेवल। बहुत प्रैक्टिस तो बाद आंसर आंदे है, बहुत रिविजन्स तो बाद आंसर आंदे है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। nobody can write at the beginning, you have to just begin with it, that is what is the requirement। just start writing, that is what is required here, right? that will be all for today। all the very best to you। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ requirement ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। I think that should be all। thank you so much for joining।